Hello, everybody. Myself, Praveen Singh. I welcome all of you on this online platform. I am going to launch a series of videos on world mapping. You know that world mapping is very, very important for you. Why? Because to have a better understanding of the world history, international relation, the climatic belt of the world, vegetational zone of the world. And apart from this, you will get around 3 to 5 questions per year in the UPSC Civil Services exam, in the CAPF, in the CDS, and the various state public services civil services exam. So it's a very, very important section and as well as the interesting one. So here in this video, uh, you will learn, you will understand the oceanic water bodies that surrounds the North America. What you have to do, dear, you have to watch this video along with what? Let me write here. Along with the Oxford Student Atlas. Oxford Student Atlas. Oxford Student Atlas. You have to highlight the location and if possible write in your कॉपी में लिखने की कोशिश करना तो क्या होगा मालूम है along with what this video you will be able to memorize around 60 to 70% thing that I am going to teach you और राइटिंग से आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाएगा सिर्फ देखने से नहीं चलेगा सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ओनली तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं होगा if you are watching the video only then it is not so beneficial for you कैसे beneficial होगा वॉच करना है एंड प्लस यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू हाईलाइट ऑन योर एटलस तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं द नॉर्थ अमेरिका सी दिस इज द नॉर्थ अमेरिका the Canada, US, Mexico, the Central American countries, and the Caribbean nations, and this island, which is under the control of Denmark. So all are what? All are comes under the North America. In North America, you know that North America, area wise, my dear, area wise, it is the third largest continent. Asia is the first, Africa is the second. And in terms of population, its rank is fourth after Asia, Africa, and Europe. Population के हिसाब से fourth and area wise third. And in this continent, there are 23 independent states. No need to memorize the population, etc. जरूरत नहीं है वो सब याद रखने का हाँ आपको कभी पूछा जा सकता है कि हाउ अमेरिका हैज बीन नेम्ड तो दिस अमेरिकन कॉन्टिनेंट हैज बीन नेम्ड on the name of an Italian explorer Amerigo Vespucci by the German cartographers Martin and the Matthias. Martin and Matthias. तो किसके नाम पर अमेरिका रखा गया डियर तो एक इटालियन एक्सप्लोरर था अमेरिगो वेस्पुक्की उसके नाम पर रखा गया तो थोड़ा सा आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैंने बता दिया हियर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका वो सब बाद में बात करेंगे थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा 10 मिनट्स का वीडियो होगा उसमें बता दूंगा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा आप लोग जानेंगे कि कैसे यार नॉर्थ अमेरिका में लोग आए ये कैसे बेरिंग लैंड ब्रिज से कैसे आए देन हाउ द वेरियस पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कैसे ये कॉलोनी बना यूरोप का कैसे इसको फ्रांस ने जीता कैसे इसको ब्रिटेन ने जीता स्पेन ने कैसे जीता ये सब आप जानेंगे बट हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट द ओशियानिक वाटर बॉडीज दैट सराउंड्स द नॉर्थ अमेरिका यही हमारा टॉपिक है तो सी टू द नॉर्थ वी हैव द आर्कटिक ओशन आपको बस हाईलाइट करना है सिंपली यू हैव टू हाईलाइट इट देन दिस ब्यूफोर्ट सी इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन ये याद रखना है कभी कभी मैच करने के लिए आएगा कि ब्यूफोर्ट सी इज अ पार्ट ऑफ विच ओशन आर्कटिक ओशन और द पैसिफिक ओशन योर आंसर वुड बी द आर्कटिक ओशन देन हेयर देयर इज अ
water strait, and that water strait connects the Arctic Ocean and the Pacific Ocean, and the name of that oceanic water strait is Bering Strait. Let us have a look. This one. See, this is the Bering Strait. To the north, we have Arctic Ocean, and to the south, we have the Pacific Ocean. So this Bering Strait, very, very important for your exam, connects the Arctic Ocean and the Pacific Ocean. And it separates whom? The Russia and the Alaska region of the USA. आपको मालूम है? You know that Alaska before 1867 was part of Russia. 1867 के पहले रशिया का पार्ट था, बट रशिया ने इसको सेल आउट कर दिया। क्यों सेल आउट किया ये हम लोग कहानी बाद में देखेंगे। ये किसका टॉपिक हो जाएगा? हिस्ट्री का। लेकिन बहुत पहले अलास्का किसका पार्ट था? रशिया का, लेकिन रशिया ने सेल आउट कर दिया उसको। क्लियर? सो रशिया सोल्ड द अलास्का। तो बेरिंग स्ट्रेट भी मालूम चल गया, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेरिंग स्ट्रेट, है ना। चलो अब उसके बाद हम लोग आ गए बेरिंग सी में, और बेरिंग सी किसका पार्ट है? तो बेरिंग सी किसका पार्ट है डियर? ये पार्ट है पैसिफिक ओशन का, रिमेंबर। गल्फ ऑफ अलास्का इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। यहां पर हम लोग आ गए, ये देखिए ये जगह आ गए, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। आप यदि इसका मैप देखोगे तो देखो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मेनली किससे सराउंडेड है? याद रखना, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इज मेनली सराउंडेड बाय मैक्सिको। ऐसा यूपीएससी में क्वेश्चन आता है और आया भी है कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और ये जो कैलिफोर्निया का जो पेनिनसुला है, बाजा पेनिनसुला है, ये किसके जुरिस्डिक्शन में है, किसके कंट्रोल में है? द आंसर इज मैक्सिको। तो आपने देख लिया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी देख लिया। यहाँ अभी थोड़ी देर में बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन गल्फ, डिफरेंस बिटवीन बे। थोड़ा सा बस आप पेशेंस रखेंगे। एंड दिस द पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, द सिविल सर्विसेज एग्जाम इज अबाउट पेशेंस, योर राइट डायरेक्शन, और वही हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं। तो हैव पेशेंस, अभी बताऊंगा आपको। सो हेयर वी आर इन द गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ पनामा, तो गल्फ ऑफ पनामा भी किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशन का पार्ट है। अब आपको गल्फ ऑफ पनामा से किधर जाना है? कैरेबियन सी में जाना है। तो यहां पर एक क्या है? एक कनाल है। उस कनाल को क्या कहते हैं हम लोग? उस कनाल को कहते हैं, सी हियर, द पनामा कनाल। यहां पर है पनामा कनाल, और याद रखना पनामा कनाल कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, एंड टू बी मोर प्रिसाइज गल्फ ऑफ पनामा एंड द कैरेबियन सी। लेकिन आप लोग के एग्जाम में उतना टफ नहीं आता है। पैसिफिक और अटलांटिक को कनेक्ट करता है द गल्फ ऑफ पनामा, एंड मोर प्रिसाइसली इट कनेक्ट्स व्हाट? गल्फ ऑफ पनामा एंड द कैरिबियन सी। इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यू नो कि दैट इन दी और अप टू 19th century you can say Panama was not an independent nation, rather it was the part of Colombia. Now in the first decade of the 20th century, 20वीं शताब्दी का पहला दशक, the first decade, construction of canal started, and that canal is going to link whom, or going to connect the Pacific and the Atlantic. Very, very strategic canal. Now US realized the strategic importance of this canal. Now US wanted to establish its control. US wanted to control the Panama Canal. So US offered the Colombia that you should hand over what? Panama Canal to whom? To USA. But the Colombia rejected the US offer. US को गुस्सा आ गया. So US did what? US organized a revolt. Where? In the Panama region. And to suppress this revolt, to control this revolt, to maintain law and order, what US did? US sent its army. And when US army was arrived, US declared what? That Panama is now an independent nation. देखिए कितना बदमाशी किया। पनामा को डिक्लेयर करवा दिया कि नाउ पनामा इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और पनामा के गवर्नमेंट से यूएस ने ट्रीटी किया कि ये जो पनामा कनाल होगा ये मेरे कंट्रोल में होगा। मेरे कंट्रोल मतलब इट नाउ द पनामा कनाल शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएस। तो पनामा कनाल अभी किसके किसके कंट्रोल में है? यूएस के कंट्रोल में।
यस, तो नाउ अब हम लोग पहुंच गए कहां पर, अटलांटिक ओशन में। एंड दिस कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। यहाँ पर बहुत सारा आइलैंड है, एंड दीज आइलैंड्स आर कंबाइंडली नोन एज कैरेबियन आइलैंड। वेस्ट इंडीज आप लोग सुने होंगे, ये सारा वेस्ट इंडीज भी है, ये आइलैंड सुने होंगे क्रिकेट में, वेस्ट इंडीज एज अ क्रिकेटिंग टीम। तो कैरेबियन आइलैंड। देन यहां पर क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना यहां पर कौन सा चैनल कनेक्ट करता है, किसको किसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को। गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को कनेक्ट करने वाला कौन सा चैनल है? चलो मैं ही बता देता हूं आप लोग को, इट इज यूकाटन चैनल। यूकाटन चैनल, यहां पर ये जो पेनिनसुला है, ये किसका पेनिनसुला है, ये है आपका मैक्सिको का। एंड दिस पेनिनसुला इज नोन एज व्हाट, द यूकाटन पेनिनसुला, इसी के नाम पर ये चैनल पड़ा। उसके बाद ये यहां पर क्या है, फ्लोरिडा स्ट्रेट। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, व्हाट इज स्ट्रेट? तो स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स द टू लार्जर वाटर बॉडी। क्या होता है, नैरो वाटर बॉडी होता है ना, जो किसको कनेक्ट करता है, द टू लार्ज वाटर बॉडी एंड सेपरेट्स द टू लैंड मास, separates the two land masses, like here the USA and this one is the Havana, is separated by which strait, Florida Strait. Here Bering Strait separates whom, the US and the Russia, connects whom, the Arctic Ocean and the Pacific Ocean. ये जो फ्लोरिडा स्ट्रेट है ना, यहां पर यू हैव अ वेरी स्मॉल टाइनी आइलैंड्स। बॉलीवुड के जो हीरोज हैं वो दुबई में जाके फ्लैट लेते हैं, एंड दे फील व्हाट, प्राइड कि यस मैंने दुबई में फ्लैट परचेज किया। मुंबई हीरोज, बॉलीवुड में, बॉलीवुड के हीरोज, दे फील प्राइड कि मैंने कहां पर वो फ्लैट परचेज किया है, तो दुबई में किया है। लेकिन ये जो हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, ये फ्लैट तो छोड़ दीजिए, सीधा आइलैंड परचेज करते हैं। सो दे हैव परचेज व्हाट, मेनी आइलैंड ओवर दिस रीजन इन द जोन ऑफ व्हाट, द फ्लोरिडा स्ट्रेट। फिर चलो आ जाओ यहां पर यूएस के नॉर्थ ईस्ट पार्ट, दिस वन, हियर वी हैव द बे ऑफ फंडी। क्या है, बे ऑफ फंडी है भाई। क्यों फेमस है यार बे ऑफ फंडी और गल्फ ऑफ फंडी? तो इट इज फेमस फॉर व्हाट, टाइडल वेव्स, हाई टाइडल वेव्स। हाई टाइडल वेव्स के लिए फेमस है कौन, बे ऑफ फंडी। देन दिस वन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सी हियर, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। यहां पर कनाडा का एक रिवर है ना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर, और द यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कनाडा, दैट इज सेंट लॉरेंस। एंड यू नो डियर कि दैट सेंट लॉरेंस रिवर इज द नॉर्थ अमेरिकाज बिजिएस्ट रिवर एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। तो ये सेंट लॉरेंस डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन दिस जोन, सो दैट्स व्हाई दिस गल्फ इज नोन एज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। अभी देखो यहां थोड़ा सा आपको अब गल्फ और बे में मैं डिफरेंस बताऊंगा, अभी बताऊंगा आपको। दिस इज द लेब्राडोर सी एंड दिस वन इज द हडसन बे। सी हेयर हडसन बे, और हडसन बे का ही पार्ट क्या है, जेम्स बे। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, राइट इन द कमेंट बॉक्स कि दैट इन जेम्स बे देयर इज एन आइलैंड, नेम दैट आइलैंड। मैं देखना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को कितना सीरियसली ले रहे हैं। तो नेम द आइलैंड विच इज लोकेटेड वेयर, इन द जेम्स बे। नाउ द टाइम हैज कम टू डिफरेंशिएट or to know the difference between the James Bay and between the bay and the Gulf. So see, bay is a body of water that is partially surrounded by what, land, partially surrounded by land, like Bay of Bengal, Baffin Bay, Hudson Bay। हडसन बे तो थोड़ा एक्सेप्शन भी हो जाता है क्योंकि ये चारों तरफ लैंड से घिरा है, बट बैफिन बे, बे ऑफ बंगाल, तो क्या होता है यार, पार्शियली सराउंडेड बाय लैंड। एंड a bay directly connects to a large main body of water such as ocean, lake or another bay.
But on the other hand, Gulf. See here, this one is the Gulf, Gulf of St. Lawrence. Just see here, Gulf of Mexico. It is a large body of water and it is surrounded by the land. And only a small part, a very narrow part connects what? Connects the other oceanic body. So having only a narrow entrance along a strait. Narrow entrance. See here, narrow entrance. See here, narrow entrance. The Gulf is large body of water, but it is surrounded by land. And the bay is less surrounded by land. And it connects with what? The main body of water or the larger body of water डायरेक्टली नॉट नैरोली आप कह सकते हैं पूरा नैरो रास्ते से कनेक्ट नहीं होता है वाइड होता है इसका जो कनेक्शन है जैसे देखो डेविस स्ट्रेट किसके साथ सॉरी बेफिन बे किसके साथ मिल रहा है डेविस स्ट्रेट या फिर इधर जो है लेब्राडोर सी के साथ तो क्या है वाइड है नैरो नहीं है लेकिन जो गल्फ होता है वो देखो अपने से बड़ा वाटर बॉडी से कनेक्ट हो रहा है या दो वाटर बॉडी से कनेक्ट हो रहा है लेकिन कैसा नैरो है तो चलो यहां तक जान गए आप लोग हडसन बे बता दिया लेब्राडोर सी बता दिया एंड दिस वन इज द बैफिन बे सी हियर दिस इज द बैफिन बे एंड रिमेंबर माय डियर that Baffin Bay is a part of which ocean? Arctic Ocean. It is a part of Arctic Ocean. And यहाँ देखिए लेब्राडोर सी और बैफिन बे को जो कनेक्ट कर रहा है water strait, the water strait that is connecting the Baffin Bay and the Labrador Sea is named Davis Strait. कैसे नाम पड़ा डेविस स्ट्रेट तो देयर वॉज एन एक्सप्लोरर अ ब्रिटिश एक्सप्लोरर हुज नेम वॉज डेविस तो ऑन द नेम ऑफ दैट एक्सप्लोरर बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट हु एक्सप्लोर्ड दिस एरिया so on the name of that British explorer this area or this strait was named Davis Strait. जरूरत नहीं है याद रखने का बट हाँ डेविस स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है तो सी डेविस स्ट्रेट इज कनेक्टिंग द लेब्राडोर सी एंड द बेफिन बे एंड इट इज वन ऑफ द वाइडेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड बहुत चौड़ा है वन ऑफ द वाइडेस्ट नॉट द वाइडेस्ट वन ऑफ द वाइडेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड विच वन द डेविस स्ट्रेट तो चलो हम लोगों ने बातों बातों में देखो छोटा सा वीडियो बनाया और आपका वाटर बॉडी ओवर तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइलैंड्स एंड देन द ओशियानिक करंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज कीप वॉचिंग